So we have covered something related to atmosphere. Then we covered the wind, different bears, then different type of cycle ki say doldrum वगैरह देखिଥିଲେ, horse latitude देखिଥିଲେ. Then there was something called furious 40s, right? uh, roaring 40s, furious 50s and shaking 60s ତା concept ବି ଦେଖିଥିଲେ and କାହିଁକି ସେଗୁଡା south ରେ ଆମେ ନଉଥିଲେ, that also we know. Then ଆମେ ଆସିଗଲେ କି କେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି rainfall ହବାର condition କଣ, then precipitation ହବାର condition କଣ, dew point ର condition କଣ, different type of cloud ହବାର different type of cloud କେମିତି formation ହୁଏ, fog, mist, haze, ये सब concept ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ. Next concept is related to types of rainfall, right? So in types of rainfall, generally what happens कि upliftment of moist air in different ways. Generally ଗୋଟେ ହଉଛି ତ conventional कि upliftment ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ air ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ current, right? कि when air moves in vertical direction we call it as current. ତ ଯେତେବେଳେ moist area ଯୋଉଥିରେ କି vapor ତମର ଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା upliftment ହଉଛି ତ different way ରେ ସେମାନେ upliftment ହେଇପାରେ. ଗୋଟେ either suddenly ଉଠି ଯାଇପାରେ या फिर धीरे धीरे gradually कहा माध्यम रे गोटे स्लोली धीरे धीरे अपलिफ्ट हुए with slanting, right? Some angle formation करके, right? गोटे tangent रो slope बने कि सेमाने uplift हुआ. Now based on the upliftment we consider there are different type of rainfall. So one is called conventional, one is orographic and गोटे होती frontal rainfall. So आमे देखिए first होती conventional rainfall. So जोटी higher insulation हबो generally जेतले सूर्य पूरा मुंडा ऊपर थिबे, for example if this is the globe, if this is the globe, बर्तन को this is 0 degree and somewhere Bhubaneswar जोटा कि 23.5 भितर ही आसीबो, am I right? Correct no? तो एमिति तो गोटे सिचुएशन आसीबो कि भुवनेश्वर ऊपर सूर्य गोटे दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भुवनेश्वर लैटिट्यूड ऊपर थिबे, हो कि नहीं? तो जदि रहिबे देन सेठी हायर इन्सुलेशन सेही दिन भुवनेश्वर सब हायर इन्सुलेशन ऑब्जर्व करिवो कि सबुठारु अधिक सूर्य किरण सेही दिन पड़िवो. सो लेट्स सपोज इन दैट डे देयर इज अ टाइम we can say let's suppose equatorial भी नहीं जा भुवनेश्वर रीजन नहीं जा कोई भी रीजन जोटी सूर्य डायरेक्ट मुंडा पर रहते जोथरे की हायर इंसुलेशन हो. सो जनरली इन इक्वेटर और इन समर सीजन प्री मानसून शावर हो. प्री मानसून मानसून एपन आसी नहीं, मानसून तो तमे देखिबो परे आसीबो जेतले प्री मानसून मानसून पूर्व जेतले से जो आमे कहउछ ना कोन दाउ कोन काला बैसाखी वाला सिचुएशन, तो से टाइम रे जो वर्षाटा हो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ रेनफॉल, काला बैसाखी कन्वेंशनल रेनफॉल. इज दैट क्लियर? Okay. So equatorial summer or pre-monsoon summer, May, June in north, the type of cloud will be formed as cumulonimbus. So cumulonimbus cloud form होगा, heavy rainfall होगा, chances of hailstorm or thunderstorm. तो हम भावो ना बहुत मात्रा रे गरम हैला कौन अर्थ सरफेस, देन एठी जेति की मात्रा रे ये गरम होगा सेति की मात्रा रे ए टेम्परेचर गैस पाइबो एंड भाबो बर्तन से माने ऊपर को उठिले ठीक अछि फाइन 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से डिक्रीज करिवे, बट जदि आंक पाखरे लगभग बहुत टेम्परेचर अछि देन मे एमाने जो ड्यू पॉइंट को अचीव करिवे, राइट, मे बी हे पारे नेगेटिव हे जिवो. जदि ड्यू पॉइंट को अचीव कला को नेगेटिव हे जाउची देन कोन हबो तमरो हेलस्टॉर्म हबो, स्लीट रो चांसेस अछि, करेक्ट. कुआ पत्थर जो पडुची तो सेटा केतेले पडिबो जेतेले तमरो इन्सुलेशन कैपेसिटी ही बहुत अधिक थिबो, देन तांको सफिशिएंट अमाउंट रो हाइट को नेकी जिवो. जेतेले सफिशिएंट अमाउंट रो हाइट को नेकी गला ड्यू पॉइंट्स माने अचीव कला वाला जदि नेगेटिव हे जाइछि सेही हाइट रे टेंपरेचर ही नेगेटिव हे जाइछि देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ hailstorm, there will be thunderstorm, there will be sleet, there will be chances of heavy rainfall. Is that clear? Conventional rainfall. Any doubt in conventional rainfall? Done. Okay. Next is orographic rainfall. So they will be uplifted slowly, slowly. गोटे पहाड़ अच्छे से पहाड़ देखिए slowly slowly से uplift होचंगे, right? Then there will be layered cloud. So cloud will be nimbostratus, correct? Nimbostratus, and generally it happens in during the monsoon season. That is what we call orographic rainfall. Then there is something called frontal rainfall. So orographic rainfall, any doubt? Orographic rainfall कि गोटे पहाड़ अच्छी देन हठात किना गोटे आसिले देन स्लोली 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 से ऊपर उठिला बेलको देन धीरे धीरे से गोटे बने ना पूरा आकाशटा पूरा मेघुआ होइक रहबो. देन एपटे तमर हे जो रेन एरिया and एपटे हे जो रेन शैडो एरिया, करेक्ट नो? This will become your onshore and the other side will be offshore. Fine. Okay. Next, frontal rainfall. The frontal rainfall रे कोन हबो ना तमर again stratus, cumulus, nimbostratus, altostratus एगुडा होचे हमर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड. तो stratus जदी हैला जोटा कि पूरा लोअर स्टेट रे, जदी मु कहबी कि cumulus ओके अगेन लो स्टेज रे, करेक्ट नो? पूरा पाखरे जोटा देखा तो stratus नले cumulus सेठी nimbostratus भी देखा जिवो.
अल्टोस्ट्राटस जेतले मु पळे आसी दैट मींस टिके हाइट ऊपर को करेक्ट 2 रु 6 किलोमीटर भलिया नै जिबी देन सीरोस्ट्राटस जदि हे जिवो 6 रु 12 किलोमीटर am I right ओके ओके नाउ फ्रंटल रेनफॉल केते हबो ना गोटे होची वार्म अछि आ एपट गोटे कोल्ड आसुची लेट्स सपोज एपट एंड जनरली एटा कोठी हबो 60 डिग्री लैटिट्यूड माने पका 60 डिग्री लैटिट्यूड आइदर नॉर्थ रे हो या साउथ रे हो जनरली आमे जेतले ओशन करेंट भी देखिबले 60 डिग्री सेपट को पळेला पारे बुले की नेकी आसुतले ठंडा पानी ट्रू मने पडुची से जो 8 वाला कांसेप्ट एपट एमती गला 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 देन एपट जेतले बुले की आणुतले आमे एपट कोन आणुतले ना कोल्ड करेंट नेकी आसुतले फॉर एग्जांपल जदि मु अटलांटिक रे मु कहिबी अटलांटिक subpolar low pressure why low pressure because of this warm current and cold current ର connection ସେଠି ଆସି ଯାଉଛି ତ now the question is कि Atlantic Ocean जदि मु कहबी Northern Atlantic Ocean रे गोटे cold current जोटा 60 डिग्री सेपटे थिवो what are the name of the cold current can you write in the message box North Atlantic रे cold current रो ना Greenland and Labrador very nice North Atlantic रे around 60 degree warm current रो ना Norwegian or Emergent or we have Norwegian that is fine Imlinger Norwegian okay Finger Imlinger jaha bi tame kocha so bartan habo gote warm current kala gote cold current asla now jetale warm current kala and epote cold current asla then habo kono na a warm front dhire dhire upar ko am I right okay तो warm current जेतले उठिला then एठी से कोन कला फ्रंट गोटे तयारी कला ना फ्रंट कोन ना गोटे वार्म टे आसिला एंड बाडे हेला कहा ऊपर ना कोल्ड ऊपर जेतले कोल्ड ऊपर बाडे हबो वार्म तुरंत उठियो करेक्ट गोटे आसिकी भाबिनियो तमे बाइक नेकी जाउतलो देन तमे हल्का अछ एंड गोटे कांथरे बाडे गेलो देन बाडेला माने सबुटु जोरे रिफ्लेक्ट के करबो तमे ही करबो ना हां कि नहीं सिंपल जिंस न कि सिंपल गोटे हेवी ऑब्जेक्ट टे आसिला एपटे गोटे होचे लाइट ऑब्जेक्ट एपटे गोटे होचे हेवी ऑब्जेक्ट गोटे लाइट ऑब्जेक्ट आसिकी हेवी ऑब्जेक्ट रे बाडे हला ताले सबुटु अधिक रिएक्शन के दबो लाइट ऑब्जेक्ट से पूरा ऊपर को उठी जिवो किंतु जदि गोटे लाइट ऑब्जेक्ट अछि एंड ता सहित गोटे हेवी ऑब्जेक्ट आसिला देन ये मे बी स्लोली उठियो am I right so two type one is cold front ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି warm front ତ ଯେତେବେଳେ warm ବାଲା ଆସିକି cold ରେ ବାଡେଇ ହେଲା then cold ଏଠି steady ଅଛି let's suppose then ସେ ଯୋଉ warm ଟା ଉଠିବ ବହୁତ fast ଉଠିବ because ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ steady ଅଛି and ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସିକି ବାଡେଇ ହବ then ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ତ ଚିନ୍ଚତ ରହିଯିବ correct no ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ ବସ୍ତୁଟେ ଆସିକି ବାଡେଇ ହେଲା ଲୋକଟା then ଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରେ correct no ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏ ବାଡେଇ ହେଲା then ଏଠି ଯୋଉ formation ହବ this is how it looks like as a cumulonimbus बुझेला ना बुझेला cumulonimbus then जदि opposite ହେଲା जदि warm steady ଅଛି and cold आसी गला then सेठी orographic rainfall वाला condition पळे आसीबो एठी जेमति एठी गोटे कन्वेंशनल भलिया क्रिएट होची जेतले कोल्ड फ्रंट अछि जदि वार्म फ्रंट हे गला ताहाले वार्म टा कोन होना धीरे धीरे ऊपर उठिबो धीरे धीरे ऊपर उठिबो धीरे धीरे ऊपर उठिबो ओके तो हेवी रेन किंतु फ्रंट अछि ताहाले सेठी हेवी रेनफॉल हबो आज लाइक कन्वेंशनल cumulonimbus ହେଲା ମାନେ ହବ କଣ ସେଠି କନଭେନ୍ସନାଲ ଭଳିଆ रेनफॉल ହବ लिमिटेड जगह रे हबो एमिति न कि सब जगह रे जदि मु कहबी कि ओरोग्राफिक इट विल बी फॉर ए वास्ट एरिया बहुत जगह रे हबो एंड स्लोली हबो इज दैट क्लियर कि स्लोली हबो गुडाई टाइम जाय हबो बट जदि cumulonimbus वाला सिचुएशन बनिला ताहाले एठी बहुत मात्रा रे रेनफॉल हबो लिमिटेड जगह रे हबो और लिमिटेड टाइम पे हबो इज दैट क्लियर फाइन ओके तो जनरली जो रेनफॉल रो कंडीशन काहे कि ना मु कहउतली कि फास्ट धीरे धीरे क्लाउड बनिला देन धीरे धीरे से ऊपर को गला देन निम्बो स्ट्रेटस बनिला देन जदी से आहुरी ऊपर को गला अल्टो स्ट्रेटस देन सीरस ए भले हमर क्लाउड फॉर्मेशन हुए एनीवे the next is this is what we called warm front correct no तो warm front रे से धीरे धीरे ऊपर को उठियो cold front रे मु तुमको जेमती एग्जांपल जस्ट सेमिति मन रखि दबा सिंपल बेसी भाबिबार नै कि गोटे हल्का जिंसटे आसिला एंड गोटे स्टेडी जिंस गोटे कोल्ड टे एपटे बसिछि भाबिनो कोल्ड टा होची ओजोनिया वार्म माने से माने हल्का आमे राइट कौन सी जिंस वार्म पानी जेतले गरम हबो जेतले माने गरम पानी टा से ऊपर को उठियो ट्रू ठंडा पानी से तळे बसिबो सो कोल्ड माने भाबिनियो ओजोनिया वार्म माने हल्का तो हल्का जिनस आसिक बाजियो माने से रिएक्ट करिवो ये तो ऊपर को उठिवो ही नहीं सो ये सफिशिएंटली 90 डिग्री उठिवो
किंतु जदि वार्म स्टेडी अछि वार्म किछि चहल होनी किंतु कोल्ड आसी कि पिटी हला देन ये कह हबो ना धीरे 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 एपट लाइन रे उठिबो तो एपट लाइन रे जो उठिबो से धीरे 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 स्ट्रैटस वाला कंसीडर बनेबो स्ट्रैटस आइदर निम्बो स्ट्रैटस हबो देन अल्टो स्ट्रैटस रे जदि सेठी जाई कि वर्षा हला देन सी भी गोटे स्ट्रैटस माने गोटे लेयर्ड वाला बहुत बड़ एरिया रे वर्षा हो करेक्ट एंड लंबा टाइम जोटा कि मानसून वाला भलिया कंडीशन भलिया दे पारे बट जदि वार्म फ्रंट सॉरी कोल्ड फ्रंट हैला देन तमे सिंपल कोल्ड फ्रंट रे तुमको मन रखियार अछि भाई this is related to cumulonimbus warm front रे तुमको मन रखियार अछि this is related to nimbostratus जदि क्वेश्चन आसला कि को फ्रंट रे सबटू हेवीली वर्षा हबो and limited region रे हबो limited time by then it would be cold front not the warm front is that clear is that clear any doubt fine okay next is cyclone so cyclones generally कोठी ना system of low pressure थिबो and isobar what is isobar ना ए सब जो region गुडा अछि सेठी सब pressure सेम थिबो तो जनरली दी प्रकार हुए गोटे हूँ टेम्परेट साइक्लोन आ गोटे हूँ ट्रॉपिकल रीजन गोटे ट्रॉपिकल रीजन रे हुए आ गोटे टेम्परेट रीजन रे ट्रॉपिकल रीजन रे तो जाना अछि बिकॉज ऑफ इंसोलेशन बट टेम्परेट रीजन रे जोटा हुए बिकॉज ऑफ एयर मास आउ फ्रंटोजेनेसिस कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट से वाला कांसेप्ट रे फ्रंटोजेनेसिस नाउ जदि हमें कहले कि एयर मास देन व्हाट इज एयर मास बिकॉज इट इज नथिंग बट द लार्ज एरिया ऑफ सेम टाइप ऑफ एयर गोटे लार्ज एरिया अछि एंड सेठी जो तक एयर अछि लगभग सेम सेम एयर अछि सो इट इज ए प्लेन सरफेस रिक्वायर तो बर्तन तबे भाबो कि जदि मु कहबी कि सेम टाइप ऑफ एयर भाबिने एठी गोटे पहाड़ अछि देन एठी किछु ऊपर तळ हेक अछि देन ऑब्वियसली ए पहाड़ ऊपर जो एयर थिबो आ एठी जो एयर थिबो ता भीतर डिफरेंस आसीबो बिकॉज एठी रो टेंपरेचर आ एठार टेंपरेचर भीतर डिफरेंस आसीबो किंतु मु जदि गोटे प्लेन एरिया नै जिबी तो ए प्लेन एरिया ऊपर जेतिकी भी एयर रहिबो सब तक को लगभग मु माने नेबे कि दे आर ऑफ सेम टाइप बिकॉज टेंपरेचर तो कांस्टेंट थिबो करेक्ट नो that means for air mass what we are considering is homogeneity so source region homogeneous hua darkar should be extensive with gentle high pressure that means there will be divergence कि टिके जदि हाई प्रेशर एरिया हे गला सेठी से सब कोन चारियाडे स्टार्ट हवा डाइवर्जेंस हवा हां कि नहीं जदि सेठी लो प्रेशर अछि देन चारियाडो आसीबे सेठी की एयर प्रेशर वगैरह बने तो जनरली एयर मास होची गोटे कांसेप्ट कि सेठी को अमाउंट रो एयर अछि एंड दैट एयर हैज टू बी इक्वल एयर माने गोटे कि समस्त सेम ही थिया दरकार सिमिलर एयर थिबा दरकार सिमिलर एयर इन द टर्म ऑफ homogeneous air in term of temperature that means to maintain the temperature that has to be a homogeneous plane is that clear and जदि air mass नथिबो then and air mass थिले ही सेटा गोटे हाई प्रेशर हबो करेक्ट नो दैट मींस एयर अछि ना हां कि नहीं एंड सेथरे किछि वेपर भी थाई पारे जदि से हाई प्रेशर जोन हैला काली आउ गोटे जगह को जाय कि से माने डाइवर्जेंस क्रिएट करके आउ गोटे जगह को जाय कि से माने वर्षा करिवे आ जदि एयर मास ही नहीं वर्षा हबो कि बुझी होछ ना बुझी correct so at equator no air mass because of low pressure that means now the question is कि air mass रो जो condition ये केतेले बनिबो जेतेले गोटे homogeneous plane बनिबो and सेठी जो टेम्परेचर सेटा मेंटेन हेकि रहउथबो एमिति न कि सफिशिएंट हाई टेम्परेचर हे गेले एयर मास ही रहबनी एयर कोठी रहबो तार मु मास नै बुझी परछो ना बुझी परनो से तो सब इवापोरेट हवा स्टार्ट हो ना तो हल्का है कि से ऊपर उठी जिवे ट्रू so at equator, generally because of heavy temperature, there is no air mass because of low pressure. So low pressure area re air mass not hai. Is that clear? For air mass, the condition to be they have to be homogeneous. There has to be a plane surface, not केमती पहाड़ पर्वत भलिया किछि गोछि गोटे चलतो सेठी एयर मास को नै परिबिनी because they are not homogeneous. There is heterogeneous because एठी surface temperature किछि अलगा थिबो एठी किछि अलगा थिबो देन एठी जोटा थिबो ताकू मत कहबे किंतु जदि मते गोटे प्लेन मिलिला and if this plane is homogeneous and एठी जो एयर अछि homogeneous and से माने जनरली टिके काहा रेस्पेक्ट रे तो हाई प्रेशर रे थिबे ना फॉर एग्जांपल मु दीटा प्लेन नउची गोटे प्लेन एठी अछि आ गोटे प्लेन एठी अछि देन एठी किछि एयर अछि एठी किछि एयर अछि तो एठी एयर मास को मु ए कहली एठी एयर मास को मु बी कहली ठीक अछि देन एठी गोटे प्लेन अछि जोटा कि इक्वेटर पाखरे दैट मींस एठी एयर मास 0 अछि ट्रू हां कि नहीं तो बर्तमान मते कुह जदि एयर मास ए एठी जो टेंपरेचर अछि लेट सपोज इट इज इन हाई प्रेशर hp1 and hp2 this is pressure 1 and this is pressure 2 okay pressure 1 and pressure 2 now I am saying pressure 1 is greater than pressure 2 बर्तमान मते कुह ए रीजन ता जदि सी हैला सी पाखु को को रीजन रो आगो एयर आले पळे आसीबो सी पाखु को ए आउ बी भितरु कोठो सबटु जल्दी एयर पळे आसीबो Yes, sir.
A ରୁ correct no because A ର pressure 1 ଅଛି ଯୋଉଟା କି high ଅଛି ତ high pressure and C ରେ low pressure ହେଇଥିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ କହିବା what is this exactly this is what we call pressure gradient Gradient. correct no so maximum the pressure gradient maximum will be the speed correct no okay any doubt in this okay so now the concept is for rainfall to have a rainfall air mass is necessary okay no? true because air mass ନଥିଲେ rainfall କେମିତି ତମେ କରିବ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ହବା ପାଇଁ ତ କିଛି ତ ଥିବେ ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ହବ କିଏ ନହେଲେ ତମେ କହୁନ 0 डिग्री ରେ ଯୋଉଠି ଏୟାର ମାସ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ହୁଏନି ସେଠି କନଭରଜେନ୍ସ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ କନଭରଜେନ୍ସ କଣ ହବ ଯୋଉଠି ଏୟାର ମାସ ଥିବ ସେମାନେ ଆସିକି କନଭର୍ଜ ହେବେ କୋଉଠି 0 डिग्री ନାଉ ଦ ଟାଇପ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଦ ସୋର୍ସ ରିଜନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଏୟାର ମାସ ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସି ୱାଟର ରେ ଆମେ କହୁଛେ ମାରିଟାଇମ ଏୟାର ମାସ ତାକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ କରୁଛେ ଏମ ट्रॉपिकल रे आमे कहउचे ट्रॉपिकल एयर मास ताको आमे डिनोट करूचे टी तो वर्तमान तम किछि डाउट अछि कि टी एम आउ गुडा कोचे गोटे थिला एक्चुअली मे बी बुक रो मिलि जवा तुमको तो जनरली एयर मास को आमे डिफाइन करले ना बेस्ड ऑन द सरफेस कि जदि लैंड मास हैला ताले आमे ताको कहले कॉन्टिनेंटल एयर मास तार वैल्यू अलग मिलियो तुमको वाटर ऊपर जदि ते हैला सेटा होची मैरीटाइम एंड ट्रॉपिकल हेले देन ताको आमे टी रे डिनोट करछे इक्वेटोरियल हेले ई रे डिनोट करा होची एंड जदि पोलर रे हैला पी रे डिनोट करा होची एंड आर्कटिक रीजन रे हेले ए रे डिनोट करा होची नाउ एई भितरु जदि तमे देखिबो कि लो प्रेशर जो रीजन लो प्रेशर रीजन रे हबो कोन ना कन्वर्जेंस सेटा तो आगुर भी आमे जानिछे करेक्ट नो लो प्रेशर जोठी भी हबो सेठी कोन हुए कन्वर्जेंस नाउ जोठी हाई प्रेशर हबो जोठी हाई प्रेशर हबो सेठी कोन हबो हाई प्रेशर जोन रे डाइवर्जेंस am I right ओके नाउ जदि आसी गला कॉन्टिनेंटल आउ मैराइन भितरे कहा पाखरे मॉइस्चर थिबो Right. मैराइन दैट मींस जदि मु काली लिखि देबी बिटवीन सी एंड एम व्हिच विल बी ड्राई एयर मास C between C, M and T, which will be wet air mass or moisture mass, more moisture. Okay. See this T tropical, this can be MT also, right? Means tropical रे marine. हाँ कि नहीं कि समुद्र ऊपर tropical region सेठी भी एमिति नुह कि समुद्र नांदी समुद्र अछंदी ना सी टी भी मु लिखि परिबि ना नहीं C for continental T for tropical MT M for marine T for tropical that means between CT and MT where do you think there will be dry air mass CT any doubt in this air mass any doubt see I'm not going into a lot of details but I'm going slowly whatever is the like point to be understand right exam re jodi कोठी गोटे point आसीगला then at least we know कि okay CT MT right polar जदि दे देला तो से भितरे क्लारिटी थिबा दरकार ओके नाउ द नेक्स्ट कांसेप्ट इज कि जदि एम रे देले आमे कहउचे ओशन अछि जोथि ପାଇଁ कि मॉइस्ट नाउ जदि आमे कहले कि ट्रॉपिकल एंड इक्वेटर जनरली एठी तुमको कोन मिलिबो वार्म एयर मास काहे कि वार्म एयर मास बिकॉज जहां तो वेपर थिबे से माने पड़े पळैथिबे इवापोरेटिंग होथिबे करेक्ट नो आ जहां गैस ओडा रहले से माने किछि किछि तुमको मिलिबे जनरली मॉइस्चर मिलिबे सो ट्रॉपिकल आ इक्वेटोरियल जदि देखियो सेठी तुमको वार्म एयर मास मिलिबे तो नेक्स्ट जदि कहबो कि पोलर आ आर्कटिक जोन सेठी तुमको कोल्ड एयर मास मिलिबे ओके एनी डाउट कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास ड्राई मॉइस्चर okay and frontogenesis माने कोन हमें कहउचे नॉर्मल जस्ट क्रिएशन ऑफ ए फ्रंट सो टेम्परेचर इन्वर्जन हबो टेम्परेचर इन्वर्जन कांसेप्ट कोन तळु पुरु गले टेम्परेचर बढ़ियो करेक्ट टेम्परेचर बढ़िबो तो गोटे फॉग रो कंडीशन भी हमें पढितले राइट फॉग क्रिएशन पई आर्ट सरफेस व्हाट इज द कंडीशन व्हाट आर द कंडीशंस सर क्लियर स्काई क्लियर लॉन्ग स्काई विंड लॉन्ग विंटर नाइट सर जो हम स्टेबल थी वो विंटर कंडीशन stable wind then temperature inversion is also one of the factor any doubt in this direct as they pare gote PYQ correct no
कि भितर कि ओके स्टेबल कंडीशन रिलेटेड टू better for creation of the fog, will that be true or false? ये वाला statement direct भी ऐसे करे तो direct हमें सीधा करते फिर okay. Now the concept is frontogenesis होची creation of the front and frontolysis होची end of the front कि front जेतले end होची that is what we call frontolysis and frontogenesis जेतले generation होची गोटे front रो that means creation of the front तो सेटा हो जाते हमरा frontogenesis तो generally cyclone जेतले होगा cyclone रो condition तो फास्ट तो कथा होची देयर हैज टू बी आइसोबार तो एई जो रीजन गोडा अछंती ए माने कोन ना ए सब रीजन रे टेम्परेचर जो सॉरी प्रेशर जो थिबो समान थिबो कोन कि नै एंड दे विल फॉर्म द क्लोज साइकिल सी एई रीजन गोडा जहां भी अछि जो जो तुमको देखा जाउची जो सर्कल गोडा एठी होची सेम प्रेशर जदी मु एठी पी लेखिली एठी भी मु पी लेखिली एठी भी मु पी लेखिली तो एई भलिया जिंस देन एई भीतर होची तमरो कोन ना ग्रेडियंट बट मते को एठी मु प्रेशर ग्रेडियंट बनै पारिबी कि this will be zero correct no because एठी जहां प्रेशर एठी भी तो सेम प्रेशर ना हो कि नहीं करेक्ट दैट मींस जदी मु नेली at a particular height सेही हाइट रे जो प्रेशर बनउची पूरा गोल रे एठी सब समान किंतु एठी जो प्रेशर एठी जदी प्रेशर P1 हैला एठी P2 can I say this P1 P2 will be different P1 P2 will be different but here every point at a particular height let's suppose this is the ground region right and it will start हैला से इठू से स्टार्ट हैला तो गोटे हाइट रे लेट्स सपोज एट हाइट ऑफ 1 किलोमीटर एंड दिस इज एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर नाउ बर्तन तो मते को 1 किलोमीटर रे गोटे मते P1 मिलला एंड 500 मीटर रे मते P2 मिलला देन P1 और P2 डिफरेंट थिबे जेहेतु डिफरेंट अछि सेते प्रेशर ग्रेडियंट बनउछि बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट द विंड विल स्टार्ट मूविंग करेक्ट नो हंगे ने एठी करंट तमे कहबो कि वर्टिकल जाउछि से बट एई भितरे सबुठी P1 ही अछि तो सेठी आउ कोन से माने मूवमेंट वगैरह देखिबा को मिलिबोनी माने कोन ना एठी जो एयर ता अछि एंड एठी जो एयर अछि दि जण भीतर प्रेशर सेम अछि तो एठु एठी कि तुमको मूवमेंट देखा जिबोनी देन साइक्लोन रो कंडीशन होछि कि भाई आइसोबार हवा दरकार गोटे क्लोज्ड साइकिल हवा दरकार एंड इट हैज टू बी लो प्रेशर कन्वर्जेंस एयर गोज अप देन जदी एयर ऊपर को उठिला देन वी कॉल इट एज थ्रू द कोरियोलिसिस फोर्स ही हेल्प करे ताको एमती सर्कुलर पोजीशन दवा पे करेक्ट नो तो साइक्लोन पई हमें देखिले गोटे आइसोबार कंडीशन हवा दरकार क्लोज साइकिल हवा दरकार लो प्रेशर क्रिएट हवा दरकार एंड एमिति नो कि सफिशिएंट लो प्रेशर लेले भी हबनी 27 डिग्री अप्रोक्सीमेटली जदी डिग्री सेल्सियस वगैरह हला टेंपरेचर वगैरह से केस रे साइक्लोन ही जाय पारे हां कि नहीं एमिति नो कि सफिशिएंट जदी मु सफिशिएंट देली देन सेमान तो बहुत ऊपर को उठी जिवे ना देन से आइसोबार वाला कंडीशन ही न हो पारे क्लोज सर्किल ही नहीं हबनी तो भाबनो गोटे एमिति सिचुएशन बनियो बर्तन भाबो कि ए कोरियोलिसिस ये कोन करबो जतले एयर टा ऊपर को उठिबो नॉर्दर्न रे तमे जानछो जतले एयर ऊपर को जाए से कोन करियो कोरियोलिसिस फोर्स ताको राइट साइड को मूवमेंट करे दबो ट्रू हां कि नहीं जतले राइट साइड को मूवमेंट हो ही चलिबो देन प्रतिटी जगह रे ताको राइट साइड रे मूवमेंट एयर रो डायरेक्शन एई भलिया अछि ताको राइट साइड को मूवमेंट कराबो देन से सर्कल बनेबो ना बनेबो कोरियोलिसिस फोर्स से सर्कल बने दबो तो बर्तन कहूँ कि এই কোরিওলিসিস ফোর্স সেତିকি বেলে তাକୁ सर्कल लगेबो जेतेबेले आर वेलोसिटी भी बहुत कम थिबो जणा पड़ले कि आर वेलोसिटी बहुत अधिक अछि देन तो से ऊपर को बढ़ी चलेबो देन सर्कल केमती बनेबो सी जगह रे तमे मते को ना फॉर एग्जांपल गोटे एयर ऊपर को उठिला देन कोरियोलिसिस फोर्स लागुची कोरियोलिसिस फोर्स टाइप भी गोटे कंडीशन अछि कि सी जेतेबेले ताକୁ बुलेबा को ट्राई करिवो एंड सेही रीजन रे बुलेबो किंतु जणा पड़ला कि से ऊपर को बहुत भाबो सफिशिएंट अमाउंट रो टेंपरेचर अछि जेतेबेले मो सफिशिएंट अमाउंट रो टेंपरेचर देबी प्रतिटी atom of the gas correct no जो गैस गुडा अछि तार जो एटम गुडा अछंती प्रतिटी इलेक्ट्रॉन से माने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पाइबे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड से माने कन्वर्टेड जदी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलला काइनेटिक एनर्जी भी अधिक थिबो तो से माने बहुत स्पॉन्टेनियसली ऊपर को उठिया को ट्राई करिवे देन जदी भी कोरियोलिसिस फोर्स लागिला सी एमिति हे ऊपर को उठे दबो करेक्ट नो बट सेठी तो तुमको आ साइक्लोन मिलिबोनी हां कि नहीं कहीं एक तो फास्ट ऑफ ऑल कि आ पाखरे जति कि भावना तमे बर्तमान 100 डिग्री 100 किलोमीटर पर आवर रे जाउछो बाइक तुमरो एपटे 100 किलोमीटर पर आवर रे जाउची एपटो जणे तुमको ट्राई करियो कि भाई मोड़ी कि तुमको सर्कल रे बुलेया पे बुलेई परिबो से टिके बाडेला बेलको तमे पूरी छाटी हे कि इयाडे खसिकी पळेबो ट्रू नो देन तमे तो बुलिबो ही नहीं किंतु देयर विल बी सर्टेन टेंपरेचर जो टेंपरेचर की
मेंटेन कले कि जदि से तुमको प्रति स्टेज रे तुमको बुले बुले चलिबो तो एठी भी जदि भाबो 100 किलोमीटर पर आवर रे अछि एठी बाडे देला तमे आहुरी आगु पळेबो एमती जाउतिलो एठी तम जनकु हिट कला देन तमे याडू टिके शिफ्ट हे जाओ आउ टिके कोरिलेसिस फोर्स लागिला तमे आउ टिके शिफ्ट हे गला देन तमे आगु कागु माडी चालुचा बिकॉज़ तमरो गाडी रो स्पीड अछि 100 किलोमीटर पर आवर किंतु जदि गाडी रो स्पीड तमरो 50 किलोमीटर पर आवर थिबो जने कहबो कि भाई टिके राइट साइड को चल देन आउ टिके राइट साइड को आउ टिके राइट साइड को देन तमे बुली परिया पय सक्षम हो बुझी होछि ना बुझी होगे सो सफिशिएंट जदि मु हेते कहबी कि आट इक्वेटर रे तुमको साइक्लोन देखा जिवो कि इक्वेटर रे सफिशिएंट टेंपरेचर जदि सफिशिएंट टेंपरेचर हैला ताका पाखरे तो एते एनर्जी थिबो कि से ऊपर को उठी पड़े एंड कोरिलेसिस फोर्स ताको एमती बुलेई ही परिबो करेक्ट नो सो देन दिस इज व्हाट वी कॉल साइक्लोन पे हमें कहले कि कोरिलेसिस फोर्स हेल्प करे साइक्लोन पे बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर रीजन हेतिबो बट एमिति न कि सफिशिएंट लो प्रेशर माने तमे कहउछ कि सफिशिएंट टेंपरेचर सेठी थिबो सफिशिएंट टेंपरेचर माने भाई काइनेटिक एनर्जी टू हाई कोरिलेसिस फोर्स भी हेल्प कर पेरोनी ताको सर्कल रे बुलिया पई आइसोबार वाला कंडीशन हबो ही नहीं जदि सफिशिएंट लो प्रेशर है इज दैट क्लियर नेक्स्ट देन व्हाट वी अंडरस्टूड इज साइक्लोन वी अंडरस्टूड कि भाई कोरिलेसिस फोर्स गोटे हेल्प करिवो लो प्रेशर हेथिबा दरकार जोट कि माने कन्वर्जेंस हेबे लो प्रेशर माने कन्वर्जेंस एंड आइसोबार होथिबा दरकार देन एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन कोन ना साइक्लोन जोठी लो प्रेशर एंटी साइक्लोन होची हाई प्रेशर दैट मींस सेठी कोन हबो डाइवर्जेंस हबो हम कि नहीं एंड दिस विल बी आइसोबार ऑफ ओपन साइकिल जोठी सेठी आइसोबार ऑफ फ्लो साइकिल थिला जोटा साइक्लोनिक कंडीशन रे थिला एंटी साइक्लोनिक एरिया रे कोन हबो आइसोबार ऑफ ओपन साइकिल एंड जनरली देयर विल बी क्लियर स्काई that means clear sky means high pressure means stable condition तो बर्तन तो मते कोना जनरली जोठी वर्षा हबनी ता ऊपर कोन थिबो क्लियर स्काई थिबो ना थिबो थिबो ना ओके नाउ at equator if you see high pressure means divergence equator रे high pressure हेले divergence हबो नेक्स्ट लो प्रेशर थिबो जदी देन कोन होची ना सी कन्वर्जेंस हेबो am I right at equator हाई प्रेशर जदि जोन थिबो ताहाले सेठी जदि क्लॉकवाइज रे डाइवर्जेंस होची लो प्रेशर रे एंटी क्लॉकवाइज रे कन्वर्जेंस होची जदि इक्वेटर रे एंटी क्लॉकवाइज रे डाइवर्जेंस होचदी देन डाइवर्जेंस होला माने गोटे जगह को जिबे सेठी कन्वर्ज हेबे एंड कन्वर्ज जो हेबे क्लॉकवाइज कन्वर्ज हेबे हां कि नहीं सी एथिरो भी गोटे एमसीक्यू बनि जिवो कि आट इक्वेटर रे जदि हाई प्रेशर होची को गोटे रीजन रे गोटे लेट सपोज हाई प्रेशर अछि इक्वेटर रे एमिति न कि पूरा इक्वेटर टा सब आडे लो प्रेशर सब आडे रहइबो फॉर एग्जांपल इक्वेटर को गोटे रीजन रे जदि हाई प्रेशर रीजन रे जदि डाइवर्जेंस होची जदि सेटा क्लॉकवाइज अछि ताहाले से जोठी की भी जिबे लेट सपोज एठी लो प्रेशर अछि एठी से कोन होची एठी क्लॉकवाइज डाइवर्जेंस देन एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंस इज दैट क्लियर क्लॉकवाइज डाइवर्जेंस एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंस जोठी लो प्रेशर थिबो हेटी एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंस हो इज दैट क्लियर and this high pressure zone can I say this is a anticyclone area divergence zone is nothing but anticyclone area and this is low pressure zone means cyclonic area any doubt that is related to सेटा हे गला तमरो कोथिरे ना okay this is actually my okay I studied somewhere from the other side okay एइथरो भी जस्ट मो टिके कवर कर दोचे सेठी के त मु जिबी तो एयर मास रे हम कहले कि सोर्स रीजन इंपोर्टेंट तो एक्सटेंसिव एरिया रे से स्प्रेड हेतिबो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन सेकंड कंडीशन गला कोन ना लो डाइवर्जेंस हाई प्रेशर बट लिटिल डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट तो जोठी एयर मास को मैं कहउछ कि से माने जनरली कोन हेबे ना डाइवर्जेंस हेबे दिस इज लैंड दिस इज वाटर बॉडी तो हमें सेति में हमें कहले हां एठी हम करथिल ना तो एठु तुम मते को एथिरु देखि किछि प्रॉब्लम अछि एथिरे बुझिया पय किछि प्रॉब्लम अछि सीपी कॉन्टिनेंटल पोलर कॉन्टिनेंटल आर्कटिक कॉन्टिनेंटल मैराइन इक्वेटोरियल कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एथिरे किछि प्रॉब्लम अछि ना एथिरो जदि मु पचार देबे कि व्हिच इज बिटवीन दिस दिस इज ए एंड दिस इज बी व्हिच वन यू आर कंसीडरिंग एज ड्राई एयर मास ए आउ बी भितर कोटा ड्राई एयर मास
साइक्लोन को अगेन आसीबा बट एयर मास ऊपर आ टिके देखिबा ड्राई एयर मास ओके cold air mass between A and B cold air mass good warm air mass okay so you understood right fine now next is ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ନା लो प्रेशर सेंटर रे हवा दरकार क्लाउडी स्काई हवा दरकार जदि साइक्लोन तयारी हबो एंटी साइक्लोन रे हमें पढिले कि भाई एक तो क्लियर स्काई थिबो डाइवर्जेंस जोन होतो बट साइक्लोन रे दैट मींस हाई प्रेशर एंटी साइक्लोन केस बट साइक्लोनिक केस रे लो प्रेशर हेतिया दरकार आठ सेंटर क्लाउड स्काई हेतिया दरकार दिस इज ए रीजन फॉर कन्वर्जेंस and in that region there will be instability stability तो आसी वही नहीं होंगे नहीं okay then isobar हेतिया दरकार that to close cycle wind ର speed थिबो from all side wind आसुथबो because convergence zone any doubt in this tropical cyclone influence of easterly east side continental affected तब भावना ट्रॉपिकल साइक्लोन এটা যদি মোর 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি पूरा स्टार्टिंग रू तुम क्लाइमेटोलॉजी रे ही ए ही पढ़िथिल ना दिस इज लो दिस इज हाई दिस साइड दिस इज हाई एंड मु बर्तन ट्रॉपिकल कथा कहूची कि ट्रॉपिकल साइक्लोन रे बर्तन हबो कोन हाई रू लो आसीबो हां कि नहीं देन राइट साइड को डिफ्लेक्ट हबो ये हाई रू लो को जीवो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट हबो दैट मींस एपटे एमती चलची तो ये सब तो ईस्टर्ली ही गलो ना ईस्ट साइड रू जनरेशन होची हां कि नहीं ट्रू तो बिकॉज ऑफ दिस ईस्टर्ली विंड एंड एठी कोरिलेसिस फोर्स लागिवो तो ता माने जो तमरो बे ऑफ बंगाल जोटा कि लगभग ई रीजन रे रहइबो एठी हबो कोन साइक्लोन तुमको देखा जीवो हां कि नहीं ओके नाउ जदि साइक्लोन केतले देखा जाओ कंडीशन हमें कहले कि भाई जेतले कन्वर्जेंस जोन थिबो दैट मींस लो प्रेशर थिबो कन्वर्जेंस थिबो क्लाउडी स्काई हबो एंड दैट रीजन विल बी इंस्टेबिलिटी एंड जदि आइसोबार कथा कहला देन इट हैज टू बी क्लोज्ड आइसोबार नाउ कोरिलेसिस फोर्स हमें नॉर्थ रे जानिचे नॉर्थ रे आ गोटा होची साउथ रे गोटे नॉर्थ रे हमें जानिचे कि जिते नॉर्थ रे जदि विंड एमती जाउची देन राइट साइड को से डिफ्लेक्ट करेबो तो जदि राइट साइड को डिफ्लेक्ट कला देन ओके सो हियर इन नॉर्थ जनरली इक्वेटर रे हमें जो डिवाइड करथिले लो प्रेशर तो इन नॉर्थ जनरली कोन होची ना साइक्लोन जो होची हाई प्रेशर जोन रो जो विंड जाउची दैट वुड बी मोरली रिलेटेड टू क्लॉकवाइज हाई प्रेशर जोन रो हमें देखिले ना जस्ट गोटे इमेज इथरे तो देखिथिले ना मने पडुची दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे हाई प्रेशर जोन रे जो विंड रो मूवमेंट दैट इज व्हाट क्लॉकवाइज विंड रो मूवमेंट देखो ना जेतले हाई प्रेशर रो लो प्रेशर को आसुची मने पडुची 0 डिग्री 30 डिग्री दिस इज 30 डिग्री ईस्टर्ली करेक्ट नो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज याकू पुणी राइट को मोड़िबो याकू पुणी राइट को मोड़िबो दैट मींस जो डाइवर्जेंस होची हां कि नहीं एठू तो डाइवर्जेंस होची ना एठी कन्वर्जेंस थोड़ी होची बुझी होची ना बुझी होनी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्ली ओके तो एठू जेतले डाइवर्जेंस होची ताकू बर्तन कोरिलेसिस फोर्स एमिति मोडुची दैट मींस दिस इज क्लॉकवाइज दैट मींस हाई प्रेशर जोन रे क्लॉकवाइज जदी होला लो प्रेशर जोन रे हबो कोन से एंटी क्लॉकवाइज ताले जो बर्तन मते को लो प्रेशर रे साइक्लोन हो ना हाई प्रेशर रे साइक्लोन लो प्रेशर रे तो जदी लो प्रेशर रे साइक्लोन हो दैट मींस साइक्लोन से को टाइप रे हबो एंटी क्लॉकवाइज इज दैट क्लियर दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर कि in northern hemisphere the cyclone will be anti-clockwise while the anticyclone or high pressure at center stable condition and clear sky that will be clockwise any doubt anticyclone region will be clockwise while the cyclone will be anti-clockwise
सी आपको ट्राई करो बुझिया पे एमती न जो घोषिया पे इस्टर्ली वंस बने देला माने कोरिलेसिस फोर्स लगा कि इस्टर्ली मु बने देली इस्टर्ली बने देला पारे प्रतिटी मोमेंट रे जतले मु डाइवर्जेंस करूची नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ए पॉइंट रे से ताको डाहण को पड़ियो ए पॉइंट रे ताको से डाहण को पड़ियो ए पॉइंट रे डाहण सो दिस इज अ रीजन ऑफ डाइवर्जेंस काहे ना एठु मु मोडुची करेक्ट नो देन दैट मींस से जतले कन्वर्जेंस करिवे कन्वर्जेंस हेबे कन्वर्जेंस दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज दैट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज कि जदी गोटे रीजन आमे जोटा देखले एठी जदी एठु एमिति माने बाहरिले देन से जाय कि जतले कन्वर्जेंस करिवे एंटी क्लॉकवाइज रे कन्वर्जेंस करिवे ऑलमोस्ट ए भळे ही कन्वर्जेंस करिवे दिस डायग्राम इज लिटिल बिट रॉन्ग दिस विल बी मोर रिलेटेड इन दिस ओके एंटी क्लॉकवाइज रो कन्वर्जेंस हो क्लॉकवाइज कन्वर्जेंस रे सॉरी क्लॉकवाइज डाइवर्जेंस नॉर्दर्न रे एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्जेंस northern रे so anti-clockwise convergence is related to tomorrow cyclone similarly south रे जदि clockwise sorry anti-clockwise देखो एठी देखो ना बर्तन एठी सिंपल देखो एठी बर्तन हाई प्रेशर एठी होची लो प्रेशर देन एठी आमे जानि जे कि कोरियोलिसिस फोर्स आ कोन करबो लेफ्ट को मोड़िबो होंगे रे कोरियोलिसिस फोर्स लेफ्ट को मोड़िबो एंड लेफ्ट को मोड़िले आको जो ये करूची कोन बर्तन डाइवर्जेंस जो होची एंटी क्लॉकवाइज होची तो एंटी क्लॉकवाइज वाला तमरो डाइवर्जेंस divergence is related to anticyclone then convergence होबो तमरो clockwise convergence clockwise तो convergence होची cyclone होबो तमरो clockwise and anti-clockwise होची तमरो divergence hence at equator generally no cyclone but can pass or originate ही पारे but ताको बुलेवा पई कोरियोलिसिस फोर्स ही नहीं बुझी होची ना बुझी that's why it is very important for the Coriolis force to give the shape नले से सर्कल केमती बनेबो एठी एठी जो बुलुची एठी बुलिया पई किए आवश्यक कोरियोलिसिस फोर्स तो एठी ओरिजिनेट हे पारे बट सी आगु को गला पर साइक्लोन ए एरिया रे हम एठी तो हबार चांस नहीं बुझियला ना बुझियला एनी डाउट सी एठु दीटा क्वेश्चन ही आसिला ना कोरियोलिसिस फोर्स लागे नॉर्थ रे और साउथ रे तो ताकू जदि तमे ट्राई करियो घोसिया पई देन हैरान हबो बस तुमको घोसिबार नहीं तुमको केवल घोसिबार अछि 0 डिग्री होछि लो प्रेशर चो आउ ए 30 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला एंड 90 डिग्री एठू जस्ट एठी तुमको आनियार अछि देन एठी तमे जानचो ईस्टर्ली एंड कोरियोलिसिस फोर्स लागिले सी ताकू क्लॉकवाइज बुलोछि एंड दिस इज डाइवर्जेंस वाला दिजो तो डाइवर्जेंस जदि क्लॉकवाइज हला एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन हो तो नॉर्थ रे एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन साउथ रे क्लॉकवाइज साइक्लोन होप इट इज क्लियर that is related to tropical okay next is temperate तो बर्तन टेम्परेट रे हबो कोन टेम्परेट इज एसोसिएटेड विथ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट करेक्ट नो जो ट्रॉपिकल रे हमें कहतले कि दैट इज रिलेटेड टू इंसोलेशन करेक्ट नो लो प्रेशर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस कोरियोलिसिस फोर्स लागला देयर विल बी लैटेंट हीट काहे ना जतले ऊपर को गला सेतले से पुनी कोन हबो हीट हबो सी बहुत बढ़िया कांसेप्ट है ये जो लैटेंट हीट कांसेप्ट है ना तो मन पकाओ हमें जतले एडियाबैटिक हीट एडियाबैटिक कूलिंग रेट पढुतले सेतले लैटेंट हीट कांसेप्ट पढितले कि जतले से ड्यू पॉइंट अचीव कर नबो सेतले लैटेंट हीट हबो तो लैटेंट हीट जेहेतु बाहरिबो व्हाई लैटेंट हीट बिकॉज़ गोटे फेज चेंज होला कि आगु वेपर थिला बर्तन से लिक्विड स्टेट को आसी होता या फिर सॉलिड स्टेट को आसी होता जदी सॉलिड स्टेट को केतला आसी जदी ड्यू पॉइंट पॉजिटिव थिबो ना नेगेटिव थिबो vapor will come to solid state if the dew point will be positive or negative answer is negative very nice now the concept is कि जहा हेले भी गोटे फेज चेंज होची जेहेतु फेज चेंज होची देयर विल बी लैटेंट हीट एंड जतले हीट हबो से हीट अगेन कोन करिवो लो प्रेशर क्रिएट करिवो हम कि नहीं हीट हैला माने लो प्रेशर क्रिएट करिवो तो जतले से लो प्रेशर क्रिएट करिवो ए तळु से पुणी भिडिवो काहाकू बिकॉज एठी लो प्रेशर एठी लो टेम्परेचर हाई हैला लो प्रेशर हैला तळे हाई प्रेशर थिवो 8 तो हाई तळे थिवो ना सेठी तळे तमे देखुतलो के 10 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर जेतला होतला ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कूलिंग रेट होती दैट मींस ये जल्दी ठंडा होची ये कम जल्दी ठंडा होची दैट मींस ये जदी वार्म थिवो ये मे बी ही पारे कोल्ड ही पारे टेम्परेचर इन्वर्जन वाला कंडीशन तो जदी एठी टेम्परेचर अधिक हला काहे के अधिक हला बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट काहे की फेज चेंज होवा को लागिलानी लैटेंट हीट देन ये कोन करिवो तळु सफिशिएंट अमाउंट रो वाटर वेपर ऊपर उठेबो आई फॉर्मेशन हो बुझियला ना बुझियला because of the latent heat the concept is related to latent heat कि latent heat रो concept जदी बुझा पड़िबोनी then cyclone भी बुझा पड़िबो कोरियोलिसिस रो concept जदी बुझा पड़िबोनी cyclone बुझा पड़िबोनी any doubt okay so we understood
for tropical cyclone, we understood one thing is low pressure. I am saying the keywords. Okay, एमिति नहीं कि मैं पूरा cyclone एठी तैयारी ही करे देबी, मु just keyword कहूची. First of all, low pressure हेतु दरकार. एते नुह कि sufficient low pressure, जो कि पुणी होइरा, correct नो? से sufficiently low pressure हेले से sufficiently ऊपर को पळेबो. Then hailstorm बढ़िया condition हबो पछे के cyclone हबो. काहे ना ताको तो बुलिया पई कोरिलेसिस फोर्स पाखरे भी बळ नथिबो. तो बळ आसीया दरकार कोरिलेसिस फोर्स. दैट मींस गोटे कंडीशन आसीया दरकार कि वाटर एट समहाउ एट लाइक 27 डिग्री सेल्सियस. तो सेइथाय मते तमे को जो तमे साइक्लोन देखुछ ओडिसा रीजन रे तमे केभे मते कुह तमे जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून 21 मार्च रे सूर्य अछि 0 21 रे अछि कोठी 23 रे देन सेप्टेम्बर पुणी 22 23 आडू को तुमको मिलियो कोठी सेप्टेम्बर 23 रे 0 रे तमे मते कुह मार्च रु जून भितरे तमे केभे देखिसो साइक्लोन ओडिसा रे आसीरा ऑलमोस्ट सेतले तमरा कोन देखाबो मोस्टली सेतले तुमको देखा जिवो आइदर हेई पारे काला बैसाखी करेक्ट नो एंड काला बैसाखी पीरियड मु कहूचे अगेन पुणी मार्च रु नै कि सेप्टेम्बर भितरे केबे भी हो काहेकि ना जति की रीजन रे ओडिसा रे जदी तमे देखो लेट्स सपोज ओडिसा रो गोटे एग्जैक्टली मु जाननी ओडिसा पर्सपेक्टिव हम केबे मन से पढ़ी नै ज्योग्राफी बट ओडिसा रो तमे लैटिट्यूड देखिनियो कि ऑलमोस्ट मते लागुची केते रो केते हेतिबो मु गोटे गेस करूची मे बी मते लागुची 8 8 हेले 15 15 रु 21 भलिया मते लागुची मु जाननी एग्जैक्टली बट लगभग 12 15 पाखारो नै कि 21 भितरे हेतिबो तो जदि 12 15 रु 21 नॉर्थ भितरे हेतिबो ओडिसा रो लैटिट्यूड दैट मींस सेटा तमरो को मास रे जीवो मोस्ट प्रोबेबली एप्रिल मिड एप्रिल रु जून 21 रे से ऊपर को पळेबो देन जुलाई अगस्त मिड या अगस्त लास्ट आड़ को ले जाओ लगभग अगस्त जाए ले जाओ दैट मींस एप्रिल मिड एप्रिल रु मिड अगस्त से भीतर सूर्य डायरेक्ट तम ऊपर थिबे ना नहीं ओडिसा ऊपर करेक्ट एंड से टाइम रे ओडिसा सबटु अधिक तातिबो एंड जदि सबटु अधिक तातिबो सेठी कोन हबो डायरेक्ट तातुची बर्तमान तो काला बैसाखी हमारा सिचुएशन बहुत अधिक हेलस्टॉर्म हमारा सिचुएशन बहुत अधिक राइट एंड स्लेट बलिया कंडीशन हमारा चांसेस बहुत अधिक एंड तुमको दिन बेले मोस्टली वर्षा न होई पारे एंड ठीक संध्या हबो जतले वर्षा नादी दे जीवो काहेकि दिन बेले इन्सुलेशन पाइबो सफिशिएंटली गरम हबो देन हठात किछि नथिबो आकाश पूरा क्लीन थिबो टिके संध्या हला को पूरा आकाश पूरा मेघछन्न होई कि से कुमुलो निम्बस वाला जिंस बनै कि वर्षा हवा स्टार्ट हिजो हां कि इज दैट क्लियर ओके बट तार रेस्पेक्ट रे पानी बर्तन तमे भाबो पानी केबे सेतिके अमाउंट टेम्परेचर गरम हे जाय परिबो हबनी देन सूर्य पळेला परे अगस्त सेप्टेम्बर आडू कॉन्सेप्ट पळेला भाई बर्तन स्टार्ट हला पानी बर्तन गोटे डिग्री को पळेला 27 डिग्री चलला से 27 डिग्री से ऊपर को उठिला लो प्रेशर क्रिएट हला एंड कोरिलेसिस फोर्स लागिला डाइवर्जेंस रे ताको घुरेला क्लॉकवाइज करेक्ट नो ईस्टर्ली को क्लॉकवाइज घुरा हला देन एंटी क्लॉकवाइज रे साइक्लोन हवा स्टार्ट हो बोलिले से करेक्ट जनरली तमे केवल साइक्लोन को एमिति देखि प्राय तो कहीं बनाते ही नहीं एमिति बनाते कि मु तो कभी देखिनी मु तो सब बळे बुले जेमि रिवर्स रे बाय डिफॉल्ट नॉर्थ रे हमें अच्छे एंटी साइक्लोन सॉरी एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन करेक्ट नो बुलिले देन से आई फॉर्मेशन करियो एनी सो दिस इज द कांसेप्ट कि लो अपर लेवल डिस्टर्बेंस ओनली ऑन द ओशन रे बर्तन स्टार्ट हला तो आमे कहले कि जो लाटेंट हीट कले कोन हो जेहेतु ऊपर बर्तन टेम्परेचर बढ़िला ऊपर जदी टेम्परेचर बढ़िबो दैट मींस से कोन करबो तळकु ऊपर टेम्परेचर बढ़िला प्रेशर लो हो जिवो मोर द टेम्परेचर प्रेशर विल बी लो प्रेशर ना टेम्परेचर जो अधिक हो लो प्रेशर हेले से कोन करबो तळु उठे दबो तळु जति कि थिबो पूरा पानी धरि उठेबो एंड उठेबो कोठी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एकटा तमे कॉन्टिनेंटल रे पाइबो ए जिंस कॉन्टिनेंटल रे एठी मॉइस्चर ता कोठु मिलिबो तळे तो माटी थिबो उठेबो काहा को से खंडिया भूत करेक्ट नो ताकू तमे कॉन्टिनेंटल रे तमे कहले ता खंडिया भूत तमे कहि परिबो मॉइस्चर नथिबो धूली उठिबो एंड धूली बुलिबो भी करेक्ट नो ओके तो कॉन्टिनेंटल रे ताकू आमे खंडिया भूत भलिया कांसेप्ट ले जाऊ बट जदी पानी को आमे जिबा देन ताकू आमे कहि दोछे भाई दिस इज ए साइक्लोनिक कंडीशन जोथरे कि मॉइस्चर उठला ओके मॉइस्चर उठला सो दिस इज व्हाट नाउ इफ यू सी दिस इज व्हाट in the middle there will be I and this I is nothing but it is a high pressure and if it is high pressure so I very important okay
कि साइक्लोन रो जोठी आई होची तो सेठी वर्षा ही होनी कहीं ना सेटा हाई प्रेशर तो काली जदि एमिति किछि क्वेश्चन आसला कि साइक्लोन रो आई जगाटारे सबटु अधिक वर्षा हो ट्रू और फॉल्स फॉल्स अरे नो कहीं बिकॉज आई जोटा सेटा होची सबटु हाई प्रेशर जदि सेटा सबटु हाई प्रेशर दैट मींस एठी तो क्लियर स्काई देखा जिवो ताहाले जो तमर जो वर्षा जो क्लाउडी स्काई सेगुडा कोन ता साइड रीजन रे देखा आई रे देखा जीवनी ठीक अछि तो आई इज रिलेटेड टू हाई प्रेशर एंड इट इज ऑफ क्लियर स्काई इज दैट क्लियर